مولانا فضل الرحمان اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو ڈٹ جانا چاہیے اور آگے دیکھتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا حالات آتے ہیں۔ ان حالات سے سب سیاسی لوگ گزرے ہیں۔ مجھے تعجب تو پیپلز پارٹی پہ ہو رہا ہے، کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف عمران خان کے الزامات آج اس کی کیا حیثیت ہو گئی ہے؟ کیا وہ ان الزامات سے دستبردار ہو گئے ہیں یا انہوں نے ان کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے؟ وہی پارٹی جو کل جمہوریت کو بچانے کے لیے اور ملک کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، آج کس بات پر وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو مطالعہ نہیں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب دنیا وقت کے ساتھ ساتھ اصل مسئلے کو سمجھ رہی ہے۔ اب ابلتا ہوا پکتا دیگ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم آج اس کی گرمی میں کافی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ کل تک یا پرسوں تک جو یکجہتی نظر آ رہی تھی، آج کچھ عقل مندی نظر آ رہی ہے۔ فرق آ گیا ہے کافی صورتحال میں اور مزید صورتحال بنتی جائے گی۔ اچھا مولانا یہ بتائیں، کیا آپ یہ جیسے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو جمہوریت کے خلاف 2011 میں پھر 2014 میں جو دھرنے چلے تھے، یہ اسی کا تسلسل ہے؟ اس کا میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ اب اس کے فیزز ہوں گے۔ اب ایک اٹیمپٹ ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا۔ یہ اس وقت بھی ہم نے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ حملہ کس شکل میں ہوگا۔ تو ایک پاناما ان کو ہاتھ آ گیا اور اب اس کو ایک بہت بڑا ایک ہتھیار کے طور پہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن نئی نسل نہیں جانتی کہ کیا یہ وہی مقدمات ہیں جس سے یہ لوگ گزر چکے ہیں، جس سے عدالتیں بھی گزر چکی ہیں۔ اب وہی پرانے نام دوبارہ نئی نسل کے سامنے پیش کی جائے، ہر شخص ہے کوئی نئی چوری نکل آئی، کوئی نئی بات ہو گئی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہر نسل کے سامنے پرانے کیس کو دوبارہ کھول دینا، ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ نئی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نئی سی خبر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ملک میں ایک ہیجان پیدا کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بڑے تدبر کا، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے روشن مستقبل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو سبوتاش کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ اس میں خامخواہ ایک تاثر دنیا میں جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اداروں کے اندر کوئی بہت ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کبھی مفید ثابت نہیں ہوگا۔ ان ہاؤس تبدیلی سے تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، نہ پاکستان غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے مستعفی ہو جائیں اور ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ لایا جائے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم؟ بہت بڑا حرج ہے۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ وجہ کیا ہوگی اس کی؟ جو لوگ خود مستعفی ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں، ان کو دوسروں کو اخلاق بتانے کا حق حاصل ہے۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسروں سے کہے کہ مستعفی ہو جائیں۔ جو لوگ استعفیٰ دینے کے باوجود کہتے رہے کہ جی ان کو واپس آنا چاہیے، ان کو بھی آج حق پہنچتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ یہ تضاد، اتنا بڑا تضاد، شرق و غرب کا فاصلہ ہے دونوں میں۔ کردار ایک ہونا چاہیے۔ کل اگر آپ اس بحران کے ہوتے ہوئے جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے، کل اگر آپ لوگوں نے کہا کہ ان کو آنے دو اسمبلی میں کوئی بات نہیں، تو پھر آپ اسی موقع پہ کھڑے رہیں۔ ایک اخلاقی طور پر اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور پھر بھی آئینی طور پر اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور پھر بھی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا آئینی طور پر ملک کا وزیر اعظم ہے اور آپ اس کو اخلاق دکھا رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی اصول ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ یہ کہیں جو سینٹ کے الیکشن ہے مارچ میں ہونے والے ہیں،
उससे पहले कि मुस्लिम लीग को फारिग करने के सिलसिला नहीं, ये भी कही जा रही है, ये भी कही जा रही है ये बातें, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तब्दीलियां लाना, इस तरीके से हाउसेस पे कंट्रोल हासिल करना, ये तो मेरे ख्याल में फिर आवाम का इदारा ना हुआ, फिर पता नहीं किसका इदारा है, हम किसका इदारा इसको समझेंगे। लेकिन आज अपोजिशन लीडर जो है वो ये कह रहे हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, वज़ीर आज़म जो है उन्हें हट जाना चाहिए, तो मतलब एक तरफ ये बातें भी की जा रही हैं। उनका अपना मौक़िफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में क्या था? जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करके घर भेजा जा रहा था और फिर भेज भी दिया गया, उस फैसले को वो मुस्तहसन करार दे रहे हैं। हमसे तो करारदाद पास कराई उन्होंने कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला ये अदालती कत्ल था और पूरे ऐवान ने इत्तेफाक राय के साथ उनका साथ दिया। कल फिर हम दोबारा एक करारदाद लाएंगे कि ये फ़ैसले अदालती कत्ल थे। रोज़ रोज़ हम यही चीज़ें करते रहेंगे। आज अदालत का फ़ैसला है, मुक़द्दस है, आज अदालत का फ़ैसला है तो इसके यकीनन इंसाफ पर मबनी है। जब दौर गुजर जाता है तो फिर असम्बली में हम फिर करारदादें लाएंगे कि अदालती कत्ल था असम्बली का, अदालती कत्ल था हुकूमत का। क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं मुल्क के अंदर? क्यों इदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? इस हवाले से हमें ज़रा ठंडे दिमाग के साथ मुल्क को देखना चाहिए। हमारा मुल्क बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है, हम किसी छोटी सी गलती की भी मुतहम्मिल नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर हमें इस मुल्क के मुस्तक़बिल को ठीक करना चाहिए। तमाम इदारों को एक पेज पे होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हम सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। जब तक हमारे दरमियान यकजहती होगी मुल्क सही चलेगा। बहुत ये भी फरमा दीजिएगा कि इमरान खान ये फरमाते हैं कि अब तक ऐसी रिवायत डाल दी कि अपनी भी करप्शन नहीं कर सकेगा, और दूसरा ये कि आपकी बातों से लगा तासुब जो आया कि इमरान खान ये भी फरमा दीजिएगा कि इमरान खान जो है CPAC के लिए जितना कारामद साबित हो जितना जो है वो नहीं कर रहा। हज़रत हमने उनके धरनों को नाकाम बनाकर CPAC के लिए रास्ते बनाए हैं, वरना सब कुछ सबूताज हो चुका होता। लिहाजा दुनिया में एक ग्रेट गेम है, उस ग्रेट गेम का वो हिस्सा है और अमेरिका और इंडिया मिलकर हमारे मुल्क में CPAC को तबाह करना चाहते हैं। चीन के जो एक नया इक़्तिसादी परवाज़ है और दुनिया में अपने इक़्तिसाद को मुस्तहकम कर रहा है, उसको सबूताज करना ये अमेरिका का एजेंडा है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल को तबाह करना ये इंडिया का एजेंडा है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। आज हमारे मुल्क में जो लोग अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं वो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा? तो इस हवाले से हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि CPAC के हवाले से हमारी फ़ौज वो एक बहुत बड़ी ज़ामिन है, लेकिन फ़ौज भी उस वक्त उस ज़मानत पर पूरी उतर सकती है जब कौम में यकजहती होती है और कौम उनकी पुश्त पर होती है। तो इस यकजहती को हमें कायम रखना चाहिए और इससे हटकर हमें कोई ऐसा किरदार की तरफ नहीं जाना चाहिए और नहीं ऐसे किरदार की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जिससे हम अदम इस्तेहकाम की तरफ चले जाएँ। एक लफ्ज़ कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि हमने करप्शन का खात्मा, आप क्या समझते कि क्या सूबा सरहद की हुकूमत, वहाँ पर करप्शन के केस क्यों नहीं उठाए जा रहे? वहाँ पर उनके करप्शन को क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा? यहाँ दावे जो उनकी तरफ से है उनको हाईलाइट किया जा रहा है और अपने सूबे में जो उनके स्कैंडल्स सामने आए हैं उसको तो आज तक छुपाया जा रहा है। खैबर बैंक स्कैंडल के क्यों छुपाया जा रहा है? उनके अपने मिनिस्टर जो है जिसको उन्होंने एक पार्टी को निकाला करप्शन की बुनियाद पर, वापस क्यों कबूल किया उसको? उसके अपने मिनिस्टर ने जो असम्बली के अंदर उनके ख़िलाफ़ करप्शन के तमाम केस का तस्करा किया है, उसको क्यों अदालत नहीं सो मोटो उसको नहीं ले रही जी? वहाँ क्यों मसले नहीं उठाए जा रहे जी? लिहाजा हमारे सूबे को बर्बाद करके और करप्शन करके उसने यहाँ मुल्क को क्या देना है? वही तो हम कह रहे हैं कि जहाँ छोटा सा तजर्बा आपने पाकिस्तान में किया और करप्शन की मिसालें कायम कर दी आपने एक छोटे सूबे में, आप पाकिस्तान में आइंदा के लिए उसी करप्शन की तरफ जाना चाहते हैं? एक बार इमरान खान की जो मिसाल देते हैं KPK की, जो हमने इस्लाहात की हैं, हमने पुलिस का निज़ाम ठीक किया, हमने ये किया। पुलिस का निज़ाम बर्बाद किया है, तमाम इदारों के इदारे मुस्ताफ़ी हुए हैं कि हम इनकी हुकूमत के दौरान इस इदारे को नहीं चला सकते, ये करप्ट लोग हैं।
ان کے چیف سیکرٹری نے باقاعدہ چارج شیٹ دے کر استعفیٰ دیا ہے، دوسرے چیف سیکرٹری نے ان کے خلاف احتجاج میں چارج شیٹ دیے بغیر استعفیٰ دیا ہے، جہاں 2 چیف سیکرٹریز کہ جس میں وہ مستعفی بھی ہوئے ہیں اور ایک نے صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ دے کر وہاں سے کیا ہے۔ کیا یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ بیوروکریسی کے لیول پر اتنا سرعام ان کے خلاف آ کر اور کوئی میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی؟ NGOs کے ذریعے صوبے کو چلایا جا رہا ہے، بیوروکریسی جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار بیوروکریسی سیکرٹریز لیول کی بیوروکریسی نے ہڑتال کی ہے، کالی پٹیاں باندھ کر کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ کیا کسی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں؟ مولانا یہ بتائیں کہ GIT جو ہے یہ آئی ہے آپ کے پاس، اور میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، کل کچھ نہیں ہوگا اس بارے میں۔ ہاں، اس گن کو نہیں اچھالنا، اس کو تو دباؤ، مٹی پاؤ۔ مولانا ایک بات، آپ کے پاس وکلاء کا ماشاءاللہ ایک مضبوط پینل ہے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب وغیرہ، ان کا یہ کیا کہنا ہے، یہ GIT میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں یا GIT جو آئی ہے وہ کس حد تک اس قابل ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے؟ اب یہ تو ماہرین قانون و آئین ہی بتا سکیں گے، اور اس پر کچھ آراء آ بھی چکی ہیں کہ GIT بنانا کیا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اصولی طور پر حکومت ہی GITs بنایا کرتی ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹو افیئرز میں آتا ہے اور یہ جوڈیشری کے دائرے میں نہیں آیا کرتا، لیکن ہو گیا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ کے بارے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی سربراہ ہو کر کسی سرکاری وسائل کا استعمال کرے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے، اس پر آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ یہ کہ عدالتی مارشل لا لگا دیا جائے، عدالت کو چاہیے کہ وہ مارشل لا لگا، یعنی ایک جوڈیشل کو کا انتظار ہم کریں جی۔ بدبختی ہوگی اس ملک کی جب عدالت کا فیصلہ آئے گا اور اس کو لوگ جوڈیشل کو سے تعبیر کریں گے، بدبختی ہوگی ہمارے ملک کی۔ حضرت میں اس قسم کی ذاتی اور کھلونوں پہ بحث نہیں کیا کرتا، میں پاکستان کے بنیادی چیزوں پہ بات کر رہا ہوں۔ میں پاکستان کے اقتصادی مستقبل کو سوچ رہا ہوں، اس کے لیے قومی یکجہتی کو۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل آپ روئیں گے اس بات پر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ تمام صورتحال ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سینئر پالیٹیشین میں؟ وہ پناہ کا کیس جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ GIT کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے آپ کے اپنے نظر میں؟ یہاں تو حضرت نااہل قرار دینا یہ عوام کی مرضی ہے ہی نہیں۔ عوام کی مرضی جو ہے وہ تو منتخب کرنے میں ہے، منتخب کر لیا، کل دوبارہ الیکشن ہوگا تو اتار دیں گے۔ اور یہ جو مڈ نائٹ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں یہ تو عوام نہیں کرتی جی، یہ تو کوئی اور لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ حادثے ہوتے ہیں اور اس کو ایک حادثہ ہی تصور کیا جائے گا، چاہے اس پر اوپر سے آپ خوبصورت ایک چارٹ لگا دیں کہ جی عدالتی فیصلہ۔ بتائیے کہ جو آج اپوزیشن ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، مزید ہے استعفیٰ، نواز شریف کہہ رہے ہیں استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ اس صورتحال کو سب دیکھ رہے ہیں، بتائیں کہ نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ اس مشکل سے وہ آسانی سے نکل جائیں؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور ابھی چونکہ بار بار پھر ایک تکرار ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ جو لوگ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو خود مستعفی ہو چکے اسمبلی سے اور اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اسپیکر صاحب کی رولنگ پر۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو یہ راستہ دیا کہ کوئی بات نہیں، اسپیکر کی رولنگ پر بھی آپ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں،
क्या इन क़ुव्वतों को भी आज किसी से ये मुतालबा करने का हक़ हासिल है कि जी आप अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं? क्या हैसियत रह गई उनकी बात की? उन्होंने ख़ुद वो काम किए हैं इससे पहले कि जो एक जमहूरियत पसंद सियासी आदमी को नहीं करने चाहिए थी। आज पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी हुई है और कल यही खुर्शीद शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ये वज़ीर आज़म के पहलू में बैठकर जमहूरियत को बचाते रहे, पार्लियामेंट को बचाते रहे। किस से बचाते रहे? आज उन्हीं के पहलू में बैठे हुए हैं जिनके हाथों से पार्लियामेंट को ख़तरा था, जमहूरियत को ख़तरा था और उसके ख़िलाफ़ वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े थे। आज वो कहाँ बैठे हुए हैं? क्या इमरान खान आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से कम चोर समझता है? आप उसको सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, अपने खिलाफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने खिलाफ उसको ताकतवर कर रहे हैं। ये क्या सियासत है? तो ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए, MQM को भी इस पर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग कल से बोल रहे हैं और हालात का असर तज्जिया कर रहे हैं और आरा दे रहे हैं और मुख्तलिफ आरा उस पर आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख कर, तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो उबलता पकता देग था आज उसमें काफ़ी ठंड आ गई है। और ये जो कल परसों तक एक यकजहती नज़र आ रही थी, आज थोड़ी सी अक्लमंदी में तब्दील हो रही है। हम उसके मुंतज़र हैं और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो अपनी उस पर नज़रसानी करें। आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इत्तेहादी जमातों से अब तक कोई इस मामले पर, इस बहरान पर कोई मुशावरत की है? देखिए, इस पर मुशावरत क्या हो सकती है? जब तक मामला अवाम में था, मैदान में था, हम सब रोज़ाना बैठते थे, मशवरा करते थे। अब जब मसला JIT में चला गया और फिर अदालत में है और हमला उनकी ज़ात पे है और मालियाती हवाले से चीज़ें आ गई हैं, तो अब ज़ाहिर है कि मसले की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है। इस तरह उनको एक तनहा करने की भी कोशिश की गई कि आपको अपना केस जो है वो अपने तौर पर लड़ना होगा। लेकिन इसके अलावा हम मुल्क के लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम हालात का तज्जिया करते हैं। हम इस एक वाक़े की गिर्द घूमने वाले जो हालात होते हैं, जो मुल्क पे असरअंदाज होते हैं, उसको भी देखते हैं और उस पर अपनी राय दे रहे हैं। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। JIT पर एतमाद करना या ना करना उन लोगों का काम है जो इसमें बराह रास्त फ़रीक हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो लिहाजा मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो उसको समझता हूँ कुल्ली तौर पर एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है। कुल्ली तौर पर सही भी हो सकती है, कुल्ली तौर पर झूठी भी हो सकती है, जुज़वी तौर पर सही भी हो सकती है, जुज़वी तौर पर झूठी भी हो सकती है। लेकिन जो असल मुकाबले में फ़रीक है, जिसको बाकायदा JIT में पेश हुए हैं, उनको उनके रवैयों का अंदाज़ मालूम है। और कुछ तो इन चीज़ों को ख़राब किया है कुछ ज़िम्मेदार इदारों की तरफ से। ट्वीट्स ने भी, वो ट्वीट्स जो हैं उसने इदारों को फ़रीक बनाने में किरदार अदा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत खात्मे के लिए ये तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है कि अपोजिशन सामने आई, पार्टियाँ सामने आई, नवाज शरीफ को अदालत में लेके आ गए, JIT बन गई। अब अगर करप्शन के खात्मे के लिए क्या किया जाए? जमीयत उलमाए इस्लाम को हुकूमत दी जाए, करप्शन ख़त्म। JUIFA के सरबराह फजल रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को डट जाना चाहिए। पहली बात मौलाना फजल रहमान ने यह की कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को डट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान की नज़र में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ PTI के जो इल्ज़ामात हैं उसकी क्या हैसियत हो गई है? उन्होंने कहा कि वही पार्टी जो हुकूमत को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए नवाज शरीफ के साथ हो गई थी, आज वो क्यों अलग जगह, वो अलग तरफ उनका ध्यान जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि कल परसों तक जो यकजहती नजर आ रही थी, ऑपोजिशन के जो इजलास हो रहे हैं, आज भी एक इजलास हुआ और उस इजलास का जो नतीजा निकला उस पर उन्होंने कहा कि कल परसों तक जो यकजहती नजर आ रही थी वो आज नहीं है। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए यही कहा कि पनामा की पकती हुई देग ठंडी होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने पेशगोई की है और कहा कि इस तरह तब्दीलियां लाई जाएंगी तो पार्लियामेंट को किसका इदारा समझा जाएगा? मसला पनामा का नहीं, मुल्क के माशी मुस्तकबिल को सबूताज किया जा रहा है। धरनों को नाकाम बनाकर CPEC के लिए रास्ता बनाया।
अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे पर मुत्तफ़िक़ न हो सकी। ANP और कौमी वतन पार्टी का अदालती फैसले से पहले इस्तीफ़े के मुतालबे से इनकार सामने आया। गुलाम अहमद बलोर और आफ्ताब शेरपाव का मौक़िफ़ था कि फौरी इस्तीफ़े का फ़ायदा तीसरी क़ुव्वत उठा सकती है, जबकि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि JIT ने वाज़ेह सबूतों के साथ तीनों नस्लों का कच्चा चट्टा खोल दिया है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा न देकर कौम से किए वादे की खिलाफ वर्जी की है। और अपोजिशन जमातों के इस इजलास में सूरत हाल दिलचस्प उस वक्त हुई जब MQM के फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि तमाम नैब मुकदमात पर मुश्तरका तहकीकाती टीम्स बननी चाहिए। एहतसाब का सिलसिला सिर्फ शरीफ खानदान पर नहीं रुकना चाहिए। फारूक सत्तार के इस मुतालबे पर अपोजिशन की जमातों के रहनुमा खामोश हो गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने जवाब दिया कि यह बात इस वक्त का मसला नहीं है। इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने बाबर अवान के बयान से इजहार लाताल्लुकी भी किया और कहा कि हम चाहते हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करे। बाबर अवान का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने फिर यह सवाल किया कि बाबर अवान ने यह मुतालबा किसकी तरफ से किया, वो किसके आदमी हैं। इस पर खुर्शीद शाह ने कहा कि बाबर अवान सिर्फ अपने आदमी हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ अपोजिशन के मुतालबे के सामने डट गए। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। उन लोगों के कहने पर क्यों इस्तीफा दूं जिन्हें अवाम ने बार बार ठुकराया। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें कोई नहीं देखता जो मुल्क तबाह करते रहे, उन्हें कोई नहीं पूछता जिन्होंने इस मुल्क को अंधेरों में गर्क किया। हमारे मैंडेट पर तीसरे वार के लिए तीसरे धरने की तैयारी की जा रही है। दूसरे धरने में ऐसे वाक़यात हुए जो बता भी नहीं सकता। दिल तो करता है कि सब कुछ बता दूं, कह दूं, ऐसा वक्त भी जरूर आएगा। हमेशा करप्शन और सिक्योरिटी रिस्क पे हुकूमतें निकाली गईं। 70 साल से जो कुछ होता रहा ये भी उसी का एक नमूना है। पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे ज़मीर और दामन पर कोई दाग नहीं। अवाम के लिए आखिर तक लड़ूं और मुकाबला करूंगा। इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। इस बार इंशाल्लाह मुल्क को पीछे नहीं धकेलने दूंगा। ये सब कहा वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कभी असूलों पर समझौता किया, ना ही NRO साइन किया। मुझे कहा गया कि ये कागज है, इस पर दस्तखत कर दो, लेकिन मैंने अवाम के मैंडेट और जमहूरियत पर समझौता नहीं किया। बड़ी कोशिश की गई कि मैं परवेज मुशर्रफ से मिलूं, लेकिन मैं कोई NRO नहीं करना चाहता था। बेनजीर भुट्टो से मिसाके जमहूरियत किया, लेकिन बहुत दुख हुआ जब मोहतरमा ने चंद हफ्तों बाद NRO साइन कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब से आए हैं तब से हमारे और इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। बिलाजवाज धरना मुहिम शुरू की गई। बड़े वाक़यात हुए, बता नहीं सकता कि दूसरे धरने में क्या हुआ। अब तीसरे धरने की तैयारी है। ये आप सबके मैंडेट पर तीसरा वार हो रहा है। दिल तो करता है कि सब कुछ कह दूं, ऐसा वक्त भी जरूर आएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने जान हथेली पर रखकर अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी। ये कोई नहीं देखता कि माजी में पाकिस्तान को अंधेरों में गर्क किया गया। हम इस मुल्क को रोशन कर रहे हैं, हमें इसकी सजा दी जा रही है। फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला किया और दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। यहाँ जब भी कोई आया उसने कहा कि आइन को फाड़ कर फेंक दूंगा। पाकिस्तान को नाकाम रियासत कहा जा रहा था। क्या आज कोई ऐसा समझता है? इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं। उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। उनके सारे वोट इकट्ठे भी हो जाएं तो भी मुस्लिम लीग नून के वोट ज्यादा हैं। हम पे करप्शन का इल्जाम लगाने वाले बता दें कहाँ रिश्वत खाई है। आज का नहीं, सारे अदवार का एहतसाब कर लें। वज़ीर आज़म ने दुआ भी की कि अल्लाह उन्हें मुश्किल वक्त से गुजरने की तौफीक अता करे। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और पार्लिमानी पार्टी के इसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि वजीर आजम की मेहनत ने नून लीग को पूरे मुल्क की पार्टी बना दिया। वजीर आजम तमाम तर ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हैं। अल्लाह ने HB प्रोग्राम कामयाब बनाने का ताज वज़ीर आज़म के सर पर सजाया। अब वज़ीर आज़म CPAC लाए हैं जिसके लिए हमने चीन के 20 चक्कर लगाए। हल्फन कहता हूँ मियां नवाज शरीफ ने कौमी ख़जाने से एक धेले की करप्शन नहीं की। इल्ज़ाम साबित करना तो दूर की बात है, कोई एक सच्चा इल्ज़ाम लगा कर दिखाएं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तर्जुमान वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि चौधरी निसार के बयान से मुताल्लिक़ बिला जवाज़ क़यास आराइयों और बेबुनियाद तबसरों से गुरेज किया जाए। वज़ीर दाखिला ज़ाती मसरूफियात की बिना पर पार्टी के पार्लिमानी इजलास में शिरकत नहीं कर सके हैं। तर्जुमान वज़ीर दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ना तो काबीना के इजलास में कोई तल्खी हुई और ना वज़ीर दाखिला ने इजलास से वॉकआउट किया। बास टीवी चैनल्स पर चलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर दाखिला आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में ज़ाती मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हो सके। इससे पहले भी वो कई पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत नहीं कर सके थे। इस पहलू को गलत रंग ना दिया जाए। वज़ीर दाखिला चंद रोज़ में मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया के जरिए अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का जिक्र करते हैं, जिनका कहना है कि जो कुछ JIT रिपोर्ट में आया है, नवाज शरीफ की जगह मैं होता तो शर्म से डूब मरता। नवाज शरीफ ने एहतिसाब से बचने के लिए इदारे तबाह किए, दूसरों को चोरी का मौका दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम हफ्ता आ रहा है। अगले हफ्ते नया पाकिस्तान बनता देख रहा हूँ। नए पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे। कारकुनान इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि सियासतदान इतने बुरे नहीं हैं जितने नज़र आते हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में 17वें जश्न आज़ादी के लोगों की रूनुमाई की तकरीब से खिताब में कही। तकरीब से वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी इरफान सिद्दीकी ने भी खिताब किया। हम आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं। हम सियासतदान इस मामले में ज़्यादा बुरे वाक़ हो गए हैं। हम बढ़ा चढ़ा के एक दूसरे की बुराइयाँ बयान करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा किया करें तो आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें और 2-3 पे तकसीम कर लिया करें। इतने बुरे भी नहीं है जितने लगते हैं। हालात के अंदर एक इंतशार की कैफियत भी है, अदम इस्तेकाम की कैफियत भी है, बेयकीनी की कैफियत भी है। धरने भी हो रहे हैं, सिट-इन्स भी हो रहे हैं, मुतालबे भी हो रहे हैं, लेकिन एक हुकूमत है जो तसलसल के साथ अपना एक काम किए चले जा रही है। सुबह उठते हैं तो अखबार देखने से पहले एक धड़का लगा होता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। टीवी का बटन ऑन करते हुए एक धड़का लगा होता है कि न जाने क्या होने वाला है। इस खौफ के और बेयकीनी के जो आसेब है, उसकी गिरफ्त में आई हुई कौमें जितने मर्जी ये जतन कर लें, उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकती जिस रफ्तार से उन्हें बढ़ना चाहिए। अब शामिल करते हैं पनामा केस JIT से मुतल्लिक खबर। पनामा रिपोर्ट के जमा होने के बाद भी पनामा JIT के इजलास मुसलसल जारी है। वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का आज भी इजलास हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने में ज्वाइन किया है। एजाज, कहिएगा, कुछ खतूत है जिनके जवाबात के मुंतज़िर हैं JIT के मेंबर्स, और 17 तक अगर आ जाते हैं तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। जी बिल्कुल, मुश्तरका तहकीकाती टीम वाजिद ज़िया की सरबराही में इस वक्त भी इजलास कर रही है। इसका इजलास मुसलसल हो रहा है। हमारी इजलास के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो खतूत लिखे थे, अभी भी कुछ खतूत के जवाब इन्हें मुंतज़िर हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद उनके जवाब आएँ। लेकिन हमारी इजलास के मुताबिक जो इजलास हो रहे हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हुक्म दे रखा है कि ये अपना काम रैप अप करें, और 17 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हीरिंग होगी, उस हीरिंग में जो मुश्तरका तहकीकाती टीम के जो 6 के 6 अरकान हैं वो भी शरीक होंगे। अभी तक 6 के जो 6 अरकान हैं वो बदस्तूर फेडरल जुडिशल अकेडमी आ रहे हैं, किसी ने भी अपना दफ्तर ज्वाइन नहीं किया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। कराची और हैदराबाद में टाइफाइड के मरीजों को दी जाने वाली दवा का असर ख़त्म हो गया। महकमा सेहत और निजी अस्पताल की तहकीक में ये इंकशाफ किया गया है कि बड़ी तादाद में बच्चों के मुतासर होने का खदशा है। माहिरीन ये कहते हैं कि टाइफाइड में मुब्तला होने के बाद इसका मुकम्मल इलाज न करवाना दवा के बेअसर होने का सबब हो सकता है। कराची में बच्चों में टाइफाइड की दवा का असर खत्म हो गया है। इस बात का इंकशाफ निजी अस्पताल और महकमा सेहत के कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में किए जाने वाले सर्वे में हुआ। इस बात की तस्दीक डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर मोहम्मद तौफीक ने भी की। उनका कहना है कि इन इलाकों में टाइफाइड के बैक्टीरिया में MDR यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस सामने आई है, जिसकी वजह से दवाएं बेअसर होने लगी हैं। सर्वे किया तो कुछ बच्चे ऐसे निकले कि जब रेजिस्टेंट है, तो जिसमें हम लोग अलार्म हुए कि ये ड्रग अगर रेजिस्टेंट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ऐसी सूरत में फिर ये प्लान किया गया कि 2 से 5 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कराई जाए ताकि बच्चे इस टाइफाइड का शिकार ही ना हो।
माहिरीन तिब के मुताबिक मानसून में बच्चों में टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह आलूदा पानी का इस्तेमाल, सफाई सुथराई का फुकदान, पानी में क्लोरीन की कमी और टाइफाइड में मुब्तला होने के बाद एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल ना कराना है। महकमा सेहत की जानिब से इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर खुसूसी मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है। प्रिवेंशन अगर स्ट्रांग होगी और मैनेजमेंट सही होगी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा और लोग इस जरासीम से बचे रहेंगे। सो इसका है ही मकसद ये कि जब आप किचन में जाएं तो आपकी हैंड वॉशिंग प्रॉपर हो, किचन में जाएं तो किचन में जो खाने पीने की अशिया है उनकी सफाई सुथराई है, तो ये बीमारी नहीं होगी। महकमा सेहत के मुताबिक टाइफाइड जानलेवा मर्ज है और मुल्क में बच्चों की सबसे ज्यादा अमवात टाइफाइड से ही होती हैं। कैमरामैन सरवर रजा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। और इसी से मुतल्लिक अफसोसनाक खबर, जहां पहली हलाकत सामने आई है। टाइफाइड में मुब्तला नौशेरो फिरोज की 6 साल की समीना हैदराबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गई। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ने टाइफाइड में मुब्तला बच्ची पर दवाओं का असर नहीं होने दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने हमें ज्वाइन किया। खबर कहिएगा, सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान तो जगह जगह में नजर ही आता है, लेकिन टाइफाइड से एक बच्ची की हलाकत भी हो गई है। ये अचानक मर्ज बढ़ा है, कोई वायरल है, क्या है ये, किस किस्म की बीमारी जो एकदम से हम रिपोर्ट अब कर भी रहे हैं और हलाकतें भी हो रही हैं? जी जो है बिल्कुल, ये मानसून का जो सीजन है इसमें जो है टाइफाइड का जो मर्ज है इसमें इजाफा देखने में आता है। जो तिब्बी माहिरीन जो महकमा सेहत के हुक्काम है इनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो सर्वे किया गया है उस पर टाइफाइड का सीजन जो था वो हाई पीच पर है। इसके साथ साथ जो पानी की लाइनें हैं उसमें सीवरेज का पानी साफ मिला हुआ है और क्लोरीन की कमी है और सफाई सुथराई का फुकदान है, और ये तमाम अवामिल मिलकर जो है टाइफाइड का सबब बनते हैं। और जब मरीज टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक खाते हैं और वो कोर्स मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, यानी अगर 10 रोज का डॉक्टर ने कहा है कि जी कोर्स मुकम्मल करना है तो 4 दिन या 5 दिन करने के बाद जब थोड़ी सी सेहत बेहतर होती है मरीज की तो उसके बाद वो रोक दिया जाता है कोर्स। तो इस वजह से जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब जो जरसूमा है वो अंदर परवरिश पा रहा है, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं वो उस पर असरअंदाज नहीं होती हैं, जिसके खिलाफ जो है अब बाकायदा मुहिम शुरू की गई है। अब मुहिम शुरू की गई है महकमा सेहत की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया खबर। आपको बताएं कि नेप्रा और के इलेक्ट्रिक की अवामी समात दूसरे रोज भी हंगामा आराई की नजर हो गई। नेप्रा ने फैसला महफूज करते हुए समात खत्म कर दी। रिपोर्ट कर रही हैं सनोविया चौधरी। मकामी होटल में नेप्रा और के इलेक्ट्रिक की अवामी समात के मौके पर दूसरे रोज भी तल्ख कलामी हुई और के इलेक्ट्रिक यूनियन और शहरियों के बीच होने वाले शोर शराबे के बायस नेप्रा ने समात रोक दी। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि टैरिफ में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि टैरिफ में इजाफे का असर सार्फिन पर नहीं पड़ेगा, ताहम नए मंसूबों पर काम ना किया गया तो बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। अगर कि इलेक्ट्रिक सरमायाकारी नहीं कर पाएगा एक मुनासिब टैरिफ की ना होने के बायस, तो आगे जो हमारे जनरेशन के मंसूबे हैं उन पर फ़र्क पड़ सकता है। उससे लोड शेडिंग के घंटों में खुदा न खास्ता इजाफा हो सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 2009 से लोड शेड से मुस्तस्ना है कराची के अंदर, वहाँ पर भी लोड शेडिंग का खदशा है। ज़राए का कहना है कि टैरिफ में इजाफे का मसला हल ना हुआ तो शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक की खरीदारी में दिलचस्पी बरकरार नहीं रख सकेगी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर के मौसम का अहवाल आपको देते हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर को अचानक बादल छा गए और खुलकर बरसे, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गर्मी और हब्स का जोर कदरे कम हो गया। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सुबह से दोपहर तक गर्मी और हब्स के डेरे। दोपहर को अचानक बादल छा गए और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई के बरक्स एयरपोर्ट, वाल्टन, शादबाग, शादरा, धर्मपुरा, मुगलपुरा, गड़ीशो और डेवल्स रोड पर तेज बारिश के नजारे देखने को मिले। मूसलाधार बारिश से जहां लोग लुत्फ उठाते नजर आए, वहीं धर्मपुरा, वाल्टन और डेविस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। इन सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई और कई मोटरसाइकिलें खड़े पानी में बंद हो गयी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 8 मिलीमीटर जबकि शहर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कैमरा टीम के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।
मुल्की मईशत से मुतल्लिक़ खबर शामिल करते हैं। IMF पाकिस्तान ने कहा है कि अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शरह तबादला में लचक ज़रूरी है। 5 जुलाई को रुपए की कदर में कमी पर स्टेट बैंक ने अपने एलामिये में शरह तबादला में कमी को मुल्की बैरूनी खातों के ऐन मुताबिक करार दिया था, जबकि वजारत ख़जाना ने इस पर बरहमी का इजहार किया था। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक बैरूनी खसारे को काबू में रखने के लिए शरह तबादला में लचक ज़रूरी है।